Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for our exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 17th October, that is Tuesday, and we are here with the Hindu analysis of Tuesday. So अगर मेरी आवाज आ रही है एक बार लिख दो, yes sir, you're audible. Okay. So basically, this is the first article talking about Supreme Court refers electoral bonds case to 5-judge constitution bench. And here is an article, High Court acquits accused in Nithari killing cites shoddy probe. So these are the two articles on the first page. We'll be discussing about it. Okay. 𝗘𝗴𝗹𝗶𝗃𝗏 revokes suspension order of IIPS director. This also will be discussing it. Okay. So let's start with this. I hope you are aware that the constitution bench should have minimum 5 judges, hai na? Yes, we have already discussed it in the past and all. So refers electoral bonds. I hope you are aware of electoral bonds and all. Actually, the CPIM, ADR, CPIM, it is a political party. Association of Democratic Reforms, this is I think an NGO. And then Common Cause, they have filed a petition actually against electoral bonds. Because the reason is because of anonymous and unlimited political donations. So the main reason is anonymous funding. Means the one who is giving the donation to a political party, the name would not be revealed in the public. So लोगों को नहीं पता चलेगा किस बंदे ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया ना. Okay, so that is what because of which it has been challenged. Okay, the Finance Act 2017 exempts electoral bonds from disclosure and all under Representation of People's Act 1951. So that is why the petition have been filed and it has been sent to the 5-judge bench. Top court cites importance of issues for the decision, says it received plea seeking the shift. The case as scheduled earlier will be listed on 31st October. Okay, 31st October को ये वाली चीज hear होगी है ना. So during an oral argument, the Chief Justice said that the court had received a plea to transfer the case from the 3-judge bench to a larger bench and all. So 3-judge bench में hearing हो रही थी. So the judge or the Chief Justice has decided to send it to the larger bench, 5-judge bench, constitution bench. Okay? Okay. Now, so there are some questions because since electoral bond is in the news. So I have given you 4 options. Please find out which of the following is incorrect. Your options are for option 1, option 2, option 3 and option 4. Okay? I am giving you some time. मैं आपको कुछ time दे रहा हूँ because I know थोड़ा सा लंबा है ये. There is a reason why I have given these long sentence because I want to explain these things also. ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता भी देना चाहता था, इसीलिए मैंने ऑप्शन में ही डाल दिया. ठीक है. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बताइए. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर इट. आई एम गिविंग यू सम टाइम, आई नो इट इज स्लाइटली लॉन्गर, तो आप टाइम लेकर के पढ़ो और आंसर बताओ इसका. So the first option says electoral bond would be a bearer instrument in the nature of promissory notes. The second option says electoral bond would be issued, purchased for any value in multiples of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, like that. Rupees में ये सब ठीक है. Then electoral bond is issued from a specified branch of RBI. Electoral bonds would have life of only 15 days. What is the right answer? अच्छा, जब भी आप इनकरेक्ट बता रहे हैं तो आपको ये बताना है कि फिर वो उसमें करेक्ट क्या है, कहां पर इनकरेक्ट मैंने किया है. So you have to tell me that here the जैसे आप कोई भी बताओगे 1 2 3 कुछ भी, तो आप उसको explain करो. The reason why you are saying that this option is incorrect, you have to explain also, because हो सकता है तुक्का से भी सही हो जाए. Because the reason why I want to explain the concepts of electoral bond. कोई बता सकता है? Yes, कुछ लोगों ने ऑप्शन सी बताया है, कुछ लोगों ने ऑप्शन बी बताया है, कुछ लोगों ने 1 3 4 2 बताया, इसका मतलब 2 रॉन्ग है इनके हिसाब से. बताइए और एक्सप्लेन, रीजन बताइए. So first of all, okay, let me explain. Electoral bond would be a bearer instrument in the nature of promissory notes. That's correct. Okay. The second is electoral bond would be issued, purchased for any value in multiples of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh. Is like this. Yes. इसी के multiple में रहेगा. That's also correct. Electoral bond is issued from the specified branch of RBI. बस यहीं पे गलत है. SBI होगा, not RBI. Okay. Electoral bonds would have a life of only 15 days. That's also correct. तो incorrect जब पूछ रहा है, सो ये वाला इनकरेक्ट होगा, आरबीआई की जगह एसबीआई होगा बस. ठीक है, यहीं पर एक चेंज किया गया था. यस यस नंदिता, वेरी गुड. हाँ, एसबीआई अक्रॉस द कंट्री. देखो, आई एम शोइंग यू एक्चुअली दिस
and a press release. Electoral bond would be a bearer instrument in the nature of promissory note and an interest-free banking instrument. है ना, interest नहीं लगेगा इसमें. Citizen of India or abroad or a body incorporated in India will be eligible to purchase it. ठीक है. सेकंड देखो ये वाला मैंने बताया 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इस तरह करके इसके मल्टीपल्स में होना चाहिए. इशूड बाय स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नॉट आरबीआई. ठीक है. And then अगर आप देखोगे it would be have a life of only 15 days during which it can be used for making donations on the only to the political parties registered under section 29A. जो registered political parties है उसी को आप donation दे सकते हो. Okay, so you can donate to the one which is registered under section 29 capital A of RPA, Representation of People's Act 1951. ठीक है. Okay, then the bonds under the scheme shall be available for purchase period of 10 days. 10 दिन ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आपको परचेज खरीद सकते हो. जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में. So there are 4 months in 1 year where for 10 days. So they will open that 10 days window where you can buy the electoral bonds at all. है ना. And electoral bond खरीदने का मतलब है कि you are actually donating amount to political party. है ना. And that is what it is. ठीक है. Okay, then first page में एक और article थी. The another article was 𝗟𝗄𝗴𝗃 accused in 𝗘hari killing cites 𝗟𝗲𝗴𝗃. Okay, so High Court तो actually acquits मतलब क्या होता है? बाइज्जत बरी करना, and that means मतलब declared innocent है ना, या इस तरह समझ लो. And has been proven innocent. That means he has not been found guilty, the person in 𝗘hari killing case. 𝗟𝗲𝗴𝗃 मतलब प्रॉपर प्रोब नहीं हुआ है, मतलब नॉट परफेक्ट और प्रोब है ना, इस तरह का चीज समझ लो. ओके, दैट इज व्हाट इट इज. सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन मंडे acquitted the 2 men accused of serial murder at 𝗘hari village in Noida in 2006. ये काफी पुरानी केस है, 2006 में केस हुआ था. So which allowed the appeals filed by the accused, acquitted them of all charges. The trial court had awarded the death penalty to the main accused. लेकिन लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अनाउंस किया था, बट हाई कोर्ट ने उनको ओवरटर्न कर दिया एंड इट सेड दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रॉपर एंड ऑल. ओके, दैट इज व्हाट द हाई कोर्ट हैज सेड. तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना, बट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इट. ओके, देन दिस इज just a small announcement. We'll be having a workshop. So 5-step to ACE CLAT 2025. So live interactive workshop on 21st October at 6 p.m. Okay, with Nivedita ma'am. So go to our app, go to CLAT section, and at 6 p.m. We'll be having a class with Nivedita ma'am. Then 2024 test series we are providing. So please attempt it. There is a request that many people have bought it. Many people are our paid students, but still they are not attempting it. आप सारा attempt करो test series. That would be very very beneficial. Then this is the 2025. और अच्छा इसमें हम लोग ना वीडियोस भी प्रोवाइड करें, वीडियो सॉल्यूशंस, उसको भी देखना जरूर से. ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन वहां पे बता रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज की चीज दे रहे हैं. ओके, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो सॉल्यूशन एज वेल. अगर नहीं टाइम है तो थोड़ा स्पीड में 1.5x 1.25x जो भी है उसमें करके देख लो, बट देख लो इसको, छोड़ो नहीं इसको. ठीक है. ओके, देन 2025 के लिए नेक्स्ट ईयर कोर्स है. इफ यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर you can call on this number 95388 95678. This is CLAT 2025 UG comprehensive course. Okay, then let's talk about editorial. The Indian Himalayan region needs its own EIA, Environment Impact Assessment. Okay, देखो I hope you are aware. देखो EIA का मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, Environment Impact Assessment. I'll be explaining this. Okay. Now, before that, first of all हम लोग हिमालयन रीजन की बात करें तो मैंने पूरा ज्योग्राफी में पढ़ाया है. There are 3 mountain ranges. तीनों का नाम कोई बता सकता है हिमालयन रेंजेस का? एनीवन? कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द 3 हिमालयन रेंजेस? 1, 2 and 3. सो ये हिमालयन रीजन है. ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर वी हैव सीन दीज आर वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम. जैसे हमने लास्ट ईयर क्लास में बताया था, फ्रेजाइल मतलब बहुत ही वीक है, मतलब थोड़ा सा अगर इफेक्ट होगा सो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. ओके, लाइक वी हैव सीन रिसेंटली, जैसे हमने देखा होगा कि अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आ गया था इस रीजन में. ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल वगैरह में अर्थक्वेक आता है, दिल्ली में आके रीजन में बहुत बार अर्थक्वेक का इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस हिमालयन रीजन. तो हिमालयन रीजन के आसपास इस रीजन में पूरा समझ लो ये अर्थक्वेक प्रोन जोन रीजन है. ओके, सेकंड आपने देखा होगा इस साल अभी हिमालय में हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, यू मस्ट हैव सीन द लैंडस्लाइड्स एंड ऑल. देन वी हैव सीन इन सिक्किम, अभी हम लोगों ने सिक्किम में देखा फ्लड्स. यू मस्ट हैव सीन द डैम गॉट अफेक्टेड एंड ऑल, है ना, ये सब भी हम लोगों ने देखा. द लैंडस्लाइड्स हैपन एंड ऑल. यस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक एक्चुअली जो माउंटेन रेंज है, पहला वाला हिमाद्री, हिमाचल एंड मतलब ऐसे हिमाद्री, हिमाचल सेकेंड एंड देन शिवालिक. यस,
So these are the three mountain ranges from north to south. है so, इसीलिए इसका मतलब क्या कि हिमालयन रेंजेस जो है उस पर थोड़ा सा इस रीजन में ज्यादा ख्याल रखना होगा. We have to be more cautious while doing any construction activity and all, because yes, these are very fragile, है ना. लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ज्यादा फ्लड्स वगैरह आने के डेंजर है and all. So ये बता रहे हिमालयन रीजन नीड्स इट्स ओन, यानी अपना स्टाइल के, यानी कुछ और खास चाहिए. We need some special type of environment impact assessment. So I'll be explaining it what exactly is EIA. So the 𝗖𝗂 Dam breach in Sikkim in early October and recent floods, landslides in Himachal are a stark reminder of the havoc our development model is wreaking on our environment, ecology and all. तो ये बता रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली 𝗖𝗂 डैम ब्रीच हुआ सिक्किम में, फिर हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हुआ, वो रिमाइंडर है हम लोग को कि जो हम लोग डेवलपमेंट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इट. The EIA is one such process defined by UNEP as a tool to identify environmental, social, economic impact of project before it is implemented. है ना. तो EIA को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में खास के डिफाइन किया है that yes, before setting up any project we will be doing EIA which will ensure कि what will be the impact, which will find out what will be the impact of environmental, social and economic impact of a project before it is implemented. ठीक है. तो इसी की वो बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई जमीन है, ठीक है, ये और यहाँ पर कुछ जैसे प्रोजेक्ट करना, बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बड़े ब्रिजेस बनाना है और इस एरिया में रिसर्च करना होगा पहले. अच्छा ये एरिया क्या बहुत इन्वायरमेंटली सेंसिटिव तो नहीं, अगर यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए क्या इस पर लैंडस्लाइड यहाँ पे हो सकता है, क्या यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. दैट्स EIA, है ना. इनफैक्ट इट इज मैंडेटेड अंडर नाउ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. अभी हम लोग आगे जानेंगे इसको. ठीक है. ओके. सो जैसे आपने देखा होगा ये सिक्किम फ्लैश फ्लड्स हैपेंड रिसेंटली एंड ऑल दीस थिंग्स वेयर इन द न्यूज़. ओके. That is what the author is talking about. Now, since we are talking about 𝗖𝗂 River, there's a question for you. 𝗖𝗂 River is a tributary of, your options are Ganga, Brahmaputra, Yamuna, Kaveri. What is the right answer to this question? 𝗖𝗂 River is a tributary of what? Ganga, Brahmaputra, Yamuna, Kaveri. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. Everyone please press the like button. We are seeing only 8 likes, 22 is watching. Yes, the right answer is option B. Brahmaputra is the right answer. Nandana, Nandita, Priya Chavan, Swapnil, Safi, yes, you all are right. हाँ, तो मैंने बताया भी है ज्योग्राफी क्लास में कि यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है लाइक दिस, है ना. सो ब्रह्मपुत्र कम्स लाइक दिस इन नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ से सिक्किम से एक 𝗖𝗂 रिवर आती है और यहाँ के मिलती है. 𝗖𝗂 इज देयर एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र. ठीक है. और यही सिक्किम है, तो यहीं पे कहीं पे आई थिंक फ्लड आया है, यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम आई थिंक, इस रीजन में कहीं पे. ओके. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम बाय द वे? सिक्किम की कैपिटल क्या है बताइए तो. ओके. So this tool compares various alternatives for the proposed project, predicts and analyzes all possible environmental repercussions in various scenarios. EIA also help decide appropriate mitigation steps and all, है ना. कि mitigation steps में जैसे for example if the how to reduce the climate change impact, है ना, कैसे उसको impact को reduce किया जाए. That's the idea of environmental impact assessment, है ना. Would need comprehensive, reliable data and would deliver results only if it is designed to seek most appropriate. तो ये सब बता रही है EIA के बारे में. सो EIA का एक प्रीकर्सर बता रही है. EIA 1976-77 में प्लानिंग कमीशन ने भी कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली EIA बट उसी तरह की सिमिलर थिंग उस टाइम पर भी हुई थी. ठीक है. तो असेस द रिवर वैली प्रोजेक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी रिवर वैली प्रोजेक्ट है तो उसका इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा. एट दैट टाइम इट वाज इन द न्यूज. फिर 1994 में ये चीज और रिजिड, मतलब थोड़ा सा और उसको इंप्लीमेंट किया गया स्ट्रांगली. एक्चुअली एक लॉ पास किया गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. आपने सुना होगा. ये वही भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद 1984 के आसपास हुआ था ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी. आफ्टर दैट दिस वाज इंप्लीमेंटेड एंड ऑल. तो प्रोमलगेटेड द फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन. उसके बाद 1994 में इसी एक्ट के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ये EIA नोटिफिकेशन इशू किया गया था. ओके. एंड मेकिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस मैंडेटरी फॉर सेटिंग अप सम स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट. कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए, जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें स्पेसिफाइड है कि अगर इस ये प्रोजेक्ट होगा तो इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस कंपलसरी है. ओके. सो दैट इज व्हाट इट वाज मेंशनिंग देयर. ठीक है. तो ये जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया, यहाँ पर मान लीजिए कुछ बड़ा बिल्डिंग्स बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, ये कुछ भी बनाना है, बिग प्रोजेक्ट्स. तो इस एरिया में क्या इंपैक्ट होगा, उसकी इकोलॉजी पर, सोशल लाइफ पर, इकोनॉमिक्स पर क्या इंपैक्ट होगा. दैट इज, उससे पहले प्रोजेक्ट करने से पहले EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, टू फाइंड आउट दैट. ओके.
यस जैसे इसमें एक 5-6 स्टेप होता है। पहले कहते हैं स्क्रीनिंग, which projects needs a full or partial assessment studies decided in this stage, ठीक है, स्क्रीनिंग इसको कहते हैं। then scoping which impacts are necessary to be assessed is decided in this stage, है ना। पहले स्क्रीनिंग क्या कहते हैं, है ना, कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट में करना है EIA, फिर इसमें स्कोप किया जाता है कि उसका क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह होगा, फिर उसके बाद होता है असेसमेंट इवैल्यूएशन डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, इसमें पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह भी होता है, देखो लिखा होगा, पब्लिक से, लोगों से भी राय ली जाती है उस रीजन की, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स बनाई जाती है, ठीक है, कि ये फाइनल रिपोर्ट है, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है ना। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग भी की जाती है, जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट इज डन, ठीक है, डिसीजन हैज बीन टेकन, नाउ द प्रोजेक्ट इज बीइंग डन, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा, मान लीजिए कुछ भी ब्रिजेस बिल्डिंग्स जो भी बनाया जा रहा है, उसके बाद मॉनिटरिंग भी करना है कि क्या वो एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो कर रहा है कि इधर उधर भटक रहा है, ठीक है, मतलब वो प्रोजेक्ट, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन। सो दीज आर एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ EIA, 5-6 स्टेप्स होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट, जस्ट हैव एन आइडिया, इतना पूरा याद नहीं करना, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। So the hallmark of 2006 notification was the decentralization of process of EC. EC मतलब वही environment clearance. अब देखो एक चीज है डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है। सो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी वी यूज द वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर जो है ना वो सेंटर से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करे, यानी जनता के पास है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि व्हेन एक्चुअली एनवायरमेंट क्लियरेंस इज डन वी नीड पब्लिक कंसल्टेशन, जनता से राय हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे लेट मी एक्सप्लेन, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड इट कि जैसे फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, फिर सेकंड ईयर गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, देन थर्ड ईयर गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं कि नहीं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या अर्बन लोकल बॉडीज है, इसको हम लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि द पावर शुड गो डाउन, है ना, जितना नीचे जनता के पास पहुंचेगा उतना ज्यादा अच्छा है, दैट विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। सो हमेशा जो है जिसको कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए, है ना। ओके, सो दिस वर्ड आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, है ना, मतलब जनता की राय से हर चीज होना चाहिए। तो यही बात है कि जब कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें लोगों की भी राय ली जाएगा, पब्लिक कंसल्टेशन नीड्स टू बी डन, है ना। That's the idea of decentralization. State government were also given powers to issue actually EC, यहाँ पर EC का मतलब वही है environmental clearance, है ना। 2006 notification came in the time of fine tuning process several times and all, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। So these are the things, हाँ। Okay, only projects enumerated in the schedule attached to the notification required by IAC, हाँ, यानी सारे projects में ये नहीं चाहिए environmental clearance, जो उसमें मेंशन है नोटिफिकेशन में कि इस प्रोजेक्ट में, है ना, कि अगर कोई डैम बनाना हो, अगर ये बनाना हो, सब सारे लिस्टेड हैं कि अगर इस केस में आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस कंपलसरी है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट, है ना। डिस्पाइट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बीइंग एक्यूरेटली अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक नीड्स इंडियन हिमालयन रीजन, द रीजन्स वल्नरेबल फ्रेजाइलिटी हैव नॉट बीन कंसीडर्ड सेपरेटली। अब वो बताइए रहे कि देखो हिमालयन रीजन जो है और ज्यादा फ्रेजाइल है, इसके लिए और स्पेसिफिक और ख्याल रखना चाहिए एज फार एज EIA इज कंसर्न, है ना। So we have to be more specific, we have to be more careful while doing EIA report and doing any project on that building construction or any other let's say hydroelectric power project and all, huh? While some industries mention the schedule to the notification cannot be set up in IHR state due to the industrial policies and all, ये सब बता रहे हैं। मतलब इनका जो मेन कहने का मतलब है कि जो हिमालयन रीजन है उसमें और अपना एक स्पेसिफिक EIA होना चाहिए, okay, that is what their main focus is because we have to be more careful. Himalaya is very ecologically fragile, जिसको हम लोग कहते हैं ना, that is what they are talking about, है ना। While categorization project is important, है ना, that impact all such project activities are seen in IHR and all, है ना। categorization of projects भी होता है, ठीक है, A कैटेगरी B कैटेगरी B1 B2 इस तरह होता है, ठीक है, इतना आपको नहीं जानना है। उसमें होता क्या कि कौन किस में रिक्वायर्ड है, किस में कम रिक्वायर्ड है, किस केस में सेंटर करेगी, किस केस में स्टेट करेगी, ठीक है। सो दैट्स द कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। अब वो बात करें कि हाँ हिमालयन रीजन में वी हैव टू बी मोर केयरफुल, व्हाई, बिकॉज हेवी फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, सिस्मिकली एक्टिव जोन, हाँ सिस्मिकली एक्टिव मतलब अर्थक्वेक प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, अर्थक्वेक प्रोन जिसको हम कहते हैं, है ना। क्योंकि हिमालय जो है ना 2 प्लेट से मिलकर बना है, जो आपको पता भी होगा, है ना, जैसे आपको शायद लेट मी शो यू ऑन द मैप, सो इफ यू आर अवेयर, सो ये दूसरा प्लेट है, आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसको इंडियन प्लेट कहते हैं, यहाँ पे तिब्बतन प्लेट है ना, इस दोनों से मिलकर के यहाँ पे बना है, और ये इसका बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री है ये, और यही तो इसीलिए मैंने बताया भी था इसको 𝗟𝗲𝗴𝗪 माउंटेन कहते हैं, यू रिमेंबर दैट आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस, है ना। इसलिए कि 2 प्लेट बाउंड्री मर्ज करके बनाए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ विच वी हैव फाउंड द हिमालयस हैव बीन फॉर्म्ड एंड ऑल।
इसीलिए चूंकि प्लेट बाउंड्री है, तो प्लेट बाउंड्री में अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है ना, आपको पता होगा शायद, है ना। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि ये जो है अर्थक्वेक प्रोन रीजन है ना। Okay, yes, these are the things being talked about. The need of these, देखो EIA के स्टेज बताया, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, है ना, पब्लिक कंसल्टेशन, ये ना हम बता रहे थे कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देन अप्रेजल, यानी फाइनल डिसीजन के बाद कि क्या एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट, है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। देखो व्हाट एल्स, एल्स मतलब प्रॉब्लम क्या है EIA के साथ। एल्स का मतलब होता है इश्यूज। व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद EIA? देयर इज नो रेगुलेटर एट द नेशनल लेवल। तो मतलब शायद वो इस तरह कुछ कहना चाह रहे हैं कि वी हैव टू हैव सम इंडिपेंडेंट बॉडी कोई हो, है ना। वी नीड टू हैव सम इंडिपेंडेंट बॉडी दैट विल लुक आफ्टर इट कि क्या EIA को प्रॉब्लम प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। दीज आर द थिंग्स, है ना। एज सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2011 केस में सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा होगा कि एक रेगुलेटर होना चाहिए, है ना। कैरी आउट एन इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट अप्रेजल, अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट्स, है ना। और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट एंड ऑल, है ना। So there should be an independent body which should ensure enforcement of EIA and all, है ना. So that is what perhaps they are talking about, है ना. In many cases EIA is done in a box ticking approach where the formality is done. तो बता रहे कई जगह में सिर्फ फॉर्मेलिटी हो जाता है, ये उनका कहने का मतलब है, और प्रॉपरली EIA शायद नहीं हो पाता है उतना अच्छे से जैसा होना चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो ये वाली जो टॉप में लेफ्ट साइड में आर्टिकल थी वो पॉलिटिकल थी, तो वो मैंने स्किप कर दिया है। Now here confronting the long term risk of artificial intelligence. देखो इसमें भी बहुत डिटेल नहीं जाना है, इसके बारे में कुछ लोगों के बारे में आप पढ़ लेना, एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़ लेना, फादर ऑफ मशीन लर्निंग वगैरह कहते हैं। फिर द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय जॉन मैककार्थी, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इनफैक्ट एज फार एज आई रिमेंबर एलन ट्यूरिंग पर दे आस्क्ड अ क्वेश्चन इन CLAT 2023 लास्ट ईयर, यस, आपको शायद याद होगा। तो यार एक और चीज पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो था लैम्डा का फुल फॉर्म, है ना, लैम्डा, ठीक है। ये सब वो पूछ चुके हैं। सो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट वी कॉल इट एज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ऑफ गूगल क्या है? कोई बता सकता है? गूगल ने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया, व्हाट इज दैट नेम? एनीवन? जैसे एक तो चैट जीपीटी है, ये किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई का है ना। अच्छा, जीपीटी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो? यू नो द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी एंड ऑल? हाँ, गूगल ने जो लॉन्च किया उसका नाम है बार्ड, हाँ, BARD, वेरी गुड। और जीपीटी जो है चैट जीपीटी को ओपन एआई ने लॉन्च किया है ना, गूगल बार्ड, वेरी गुड, मेनी पीपल आर आंसरिंग इट। नंदना, नंदिता, सैफी, प्रिया, चवन, यू आर राइट, हाँ, यस, हरप्रिया, कार्तिक। तो देखो इसमें क्या, अगेन वो एथिक्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिक्स एंड ऑल, है ना। इट्स अ डायनामिक कांसेप्ट ससेप्टेबल टू शिफ्ट्स एंड सोसाइटल चेंजेस एंड ऑल। तो यही सब बता रहे हैं। विविड सिनेमैटिक एग्जांपल ऑफ इवॉल्विंग प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क इन द फिल्म एक्स मशीना, एक फिल्म है उसके बारे में कोट कर रहे हैं जिसमें ये सब बात चीज दिखाई गई है। सो दैट इज व्हाट, हाँ, जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ये एग्जाम में सवाल आया था, आई थिंक दिस ईयर इन जामिया एग्जाम एंड ऑल। The immediate risk might be more tangible, such as ensuring that artificial intelligence system does not malfunction in its day-to-day risk and all. AI's role in society. अब उसमें रिस्क क्या क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, है ना। तो जैसे एक युवल नोआ हरारी, ही इज अ वेरी फेमस आई थिंक स्कॉलर एंड ऑल, इनका कई बार नाम वगैरह आता है ना, हैज एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट अमेलगमेशन ऑफ एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी। अमेलगमेशन मतलब यहाँ पे मिक्सचर, मिक्सिंग एआई विद बायोटेक्नोलॉजी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी को आप मर्ज कर दोगे तो उसके बहुत सारे कंसर्न्स भी है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है, जैसे आपने सुना होगा जीन एडिटिंग, हैव यू हर्ड इट? जीन एडिटिंग, है ना। फिर एक टूल होता है CRISPR-Cas9, ये न्यूज में आता है अक्सर, वो जीन एडिटिंग टूल है एक्चुअली, ठीक है। सिमिलरली आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये कैंसर वगैरह सॉल्व करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, ओके। देन IVF टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी काम होता है, देन अदर थिंग्स और ऑल। तो जीन एडिटिंग वगैरह सबका मिसयूज भी किया जा सकता है एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीटी कॉटन का नाम सुना है, जो GM क्रॉप था, वन ऑफ द फेमस GM क्रॉप व्हिच हेल्प्ड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बीटी कॉटन। आपने सुना होगा, यस, क्लोनिंग, वेरी गुड, समवन इज राइटिंग, क्लोनिंग आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भाई वो जीन एडिटिंग वगैरह से होता है ना। अब देखो इसमें क्या है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिक्स कर दिया है, तो मतलब मिस यूज करने के लिए बायो वेपन ही बनाया जा सकता है,
कि कोई ऐसी बीमारी फैला दी जाए जैसे लोग की डेथ हो जाए, समथिंग लाइक दैट. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ फियर दैट यस इट हैज, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव यूज भी होने लगता है. सो दैट इज इशू यू शुड बी नोइंग इट, है ना. So highlight the potential to fundamentally alter human existence by manipulating human emotions, thoughts and desires. Yes. यानी इंसान के थॉट, डिजायर, इस सब को अगर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, अगेन वही जीन एडिटिंग से, so it will be very dangerous, है ना. कुछ भी हो सकता है बिकॉज अगर मिसयूज करना शुरू कर दिया जाए. Similarly, although seemingly improbable and runaway AI could cause more harm such as manipulation of crucial systems such as water distribution and all. तो उसके और भी impacts बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, केमिकल वाटर सप्लाई, ये सब. ठीक है, इसमें उन्होंने पूरा यही बताया है कि क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है. तो आप इसको ओवरऑल पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डीप में जाने का नहीं है. नाउ साइड में एक आर्टिकल थी, द सेंटर शुड स्टिक टू टाइमलाइंस टू अवॉइड फ्रिक्शन विद द कॉलेजियम. देखो आपको पता होना चाहिए कि द करंट वे ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज डन थ्रू कॉलेजियम सिस्टम. ठीक है, ओके. हालांकि एनजैक वाज पास्ड, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015-16 में काफी फेमस हुआ था, बट इट वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, है ना. So now we are having NJAC. अच्छा, कोई बता सकता है कि NJAC is having NJAC जो है वो कौन सा constitutional amendment था? Which constitutional amendment it was? Can anyone write in the live chat? National Judicial Appointment Commission was dash constitutional amendment. खैर, तो इसमें बता ये रहे कि आपको पता होगा कॉलेजियम जो है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, वो रिकमेंड करती है नेम्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, ये सब आपको पता होगा, है ना. So the center's assurance to the Supreme Court that it would soon notify the appointment of Justice 𝗟𝗲𝗴𝗪 of Delhi High Court as Manipur High Court Chief Justice is a welcome development. हाँ, 99th amendment was related with NJAC. Good, many people are writing. So actually, Justice 𝗟𝗲𝗴𝗪 is actually Delhi High Court judge, and the collegium had recommended him to be made a Chief Justice of Manipur High Court. ठीक है, तो कैसे गवर्नमेंट ने, I mean the government has accepted it, है ना. बट देयर आर अदर केसेस जो 17 नेम्स है, इट इज येट टू बी अप्रूव्ड एंड ऑल, ये सब आपने देखा होगा पहले भी, है ना. सो हिज नेम वाज रिकमेंडेड, तो और भी है ना, हिज नेम वाज रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम ऑन जुलाई 5 एंड द डे वाज क्वाइट स्ट्रेंज एंड ऑल. तो ये पुराना भी बहुत सारा केस निकाला, जैसे जस्टिस एमवी मुरलीधरन का एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर था, इनका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट. आई होप यू आर अवेयर. सो द मणिपुर हाई कोर्ट जज who passed an order regarding Metis community and all, and to be given tribal status and all, उन्हीं का ट्रांसफर हुआ. So ये सब चीजें. So he is quoting some of the examples. The author, the editor of the newspaper, quoting some example. कि देखो इस केस में जो जस्टिस टी राजा है, was acting chief justice for an unusually long period. Recommendation to transfer him to the Rajasthan was ignored by the government until his retirement. मतलब यही है कि टी राजा, जस्टिस टी राजा को कहा गया था कॉलेजियम के द्वारा कि राजस्थान में ट्रांसफर कर दिया जाए, but the government did not approve it. And he retired. तो यही बता रहे हैं कि डिले की वजह से, the government's delay in approval and all, these are the things being talked about. ठीक है, तो वो अपना एग्जांपल वगैरह कुछ कुछ दे रहे हैं कि ये एग्जांपल एंड ऑल, these are the things they are talking about. Now no dengue epicenter so far in 2023 cases spread across India. अच्छा, एक चीज बताओ, डेंगू is caused by a mosquito. उस मॉस्किटो का नाम क्या है? Name of the mosquito that causes dengue and all. सो देखो इसमें जैसे लिखा है, एपी सेंटर मतलब जहां पर बहुत ज्यादा हो, है ना. एपी सेंटर एक्चुअली वर्ड ज्योग्राफी में अर्थक्वेक के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर बायोलॉजी में यूज कर रहे हैं, मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा है, कोई एक सिटी हो जहां बहुत ज्यादा डेंगू, सो दे यूज इट एपी सेंटर वर्ड. सो नो डेंगू एपी सेंटर सो फार, केसेस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे इंडिया में, बट छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड डिस्प्रोपोर्शनली हाई डेथ रेट, दो इट फॉर्म लोएस्ट शेयर ऑफ डेंगू केस इन रिसेंट ईयर्स. हालांकि केस बहुत ज्यादा नहीं है डेंगू का, लेकिन परसेंटेज वाइज डेथ रेट ज्यादा है छत्तीसगढ़ स्टेट में. दैट इज व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट. एडिस इजिप्शिया नाम है मॉस्किटो का. ठीक है, दिस इज द मॉस्किटो व्हिच इज कॉजिंग डेंगू डिजीज, है ना. ओके, यस, हाँ, ओके, ये नाम याद रखना है, हो सकता है पूछ लें. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. इसमें देखो ना, इसमें इतना डिटेल वगैरह नहीं जाना, चार्ट डाटा ये सब क्या करोगे पढ़ के, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बेंगलुरु वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, इसको भी आप स्किप कर सकते हो. ये वाला एक था IIPS डायरेक्टर सस्पेंशन आफ्टर ही रिजाइंस. सो एक्चुअली क्या हुआ था, मिस्टर KS जेम्स, हिज नेम इज, हाँ, मिस्टर KS जेम्स, ही वाज सस्पेंडेड आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक. ही वाज द डायरेक्टर ऑफ IIPS. IIPS क्या होता है? देखो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज डायरेक्टर. ही वाज सस्पेंडेड, है ना, बट ही रिवोक सस्पेंशन 2 months आफ्टर रिजाइन. तो फिर उन्होंने रिजिग्नेशन ही भेज दिया एंड सेंटर हैज रिवोक द सस्पेंशन, यानी हटा दिया सस्पेंशन को. ओके,
ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज. इफ यू रीड इट, दे आर मोर कंसर्न अबाउट पॉपुलेशन साइंस. इसका मतलब ही है कि दे आर कंसर्न अबाउट रिसर्च इन पॉपुलेशन स्टडीज, कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी रिसर्च करते हैं. डेमोग्राफी वही होता है पॉपुलेशन, आबादी की कितना परसेंट कहाँ घट रही है बढ़ रही है. दैट्स दे डू द रिसर्च इन दिस फील्ड. ठीक है. अगर आप गौर से देखो यहाँ लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, just wait. The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has designated IIPS as the nodal agency, okay, for responsible for providing coordination and technical guidance of National Family Health Survey, है ना. आपको पता होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो NFHS का डेटा निकाला जाता है, सर्वे किया जाता है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. इसमें बहुत सारी चीज आती है, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कैसा है, टोटल फर्टिलिटी रेट कैसा है ना. सो उसके लिए जो है IIPS एक नोडल एजेंसी है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनको डेजिग्नेट किया है IIPS. ठीक है. ओके, यू शुड बी नोइंग इट. नाउ वन क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर का नाम आपको बताना है. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्टर. आई एम वेटिंग फॉर दैट. ओके, ये बता दिया, जस्टिस मृदुला अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट. देन हाँ, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये आज जजमेंट आने वाला है. सो स्टार मार्क दिस. सुप्रीम कोर्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज केस स्लेटेड टुडे. सो अभी आई थिंक वेरी सून यू विल फाइंड इट, है ना. तो एक्चुअली क्या है, अच्छा प्लीज टेल मी नेम ऑफ द जजमेंट इन विच homosexuality was decriminalized. ओके, कौन से नाम बताना जजमेंट का जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था. आई एम वेटिंग फॉर दैट. और अभी जो जजमेंट आने वाला है वो मैरिज से रिलेटेड, वेदर सेम सेक्स मैरिज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और नॉट. सो पीपल हैव फाइल्ड पिटीशन, द हियरिंग हैज बीन डन, एंड अभी हो सकता है टुडे you will find this news. Yeah, by the end of the evening you will find this news. Okay. Yes, Mr. Mansukh Mandavia is the health minister. It's the health minister of India. Na? Okay. Good. I have got the someone has Navtej Singh Johar versus Union of India. Yes, Nandana, Nandita, both are right. So the name of the judgment is Navtej Singh Johar versus Union of India. Navtej Singh Johar case 2018. Okay, so you should be knowing it. These are important ones. Court declines abortion plea, says it cannot stop heartbeat of viable fetus. ठीक है. देखो, आई होप यू आर अवेयर, ये सब न्यूज में चल रहा था. देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंड किया गया था, ये मैंने बताया है ना. देखो यहाँ पे दैट इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2021 एंड ऑल, है ना, कि 20 वीक्स से बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया. अगर 24 वीक्स से ज्यादा है तो देन यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इफ अबॉर्शन नीड्स टू बी डन, है ना. एंड अपर जस्टेशन लिमिट ऑफ 24 वीक्स डू नॉट अप्लाई इफ देयर इज सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मेलिटी. अगर एब्नॉर्मेलिटी होगा तब जो है हो सकता है जुडिशरी अलाउ करते हैं ना. बट दे आर सेइंग कि वायबल fetus है, मतलब ये है कि बच्चा ठीक है, द चाइल्ड इज फाइन, शी इज फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, मेडिकली अनेबल टू कैरी, डिलीवर, टू रेज चाइल्ड. ये तो पेटिशनर्स का काउंसिल था, यानी पेटिशनर ने कहा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट अलाउ द अबॉर्शन. देखो, आपको समझना होगा, उसका दो रीजन होता है. अगर आप देयर आर पीपल हु सपोर्ट अबॉर्शन, देयर आर पीपल हु अपोज इट. तो जो सपोर्ट करते वो बोलते हैं कि वुमेन्स राइट है, कि दैट इज हर राइट, इफ शी वांट्स दैट इज हर चॉइस टू डू अबॉर्शन और नॉट. लेकिन जो अपोज करते हैं उनका एक और लॉजिक रीजन ये है कि देखो, चाइल्ड में लाइफ आ जाती है ना, इवन इफ ए चाइल्ड इज अनबॉर्न आफ्टर 24 वीक्स, उस वक्त तक लाइफ आ चुकी होती है. तो लाइफ आर्टिकल 21 का वायलेशन है. यू आर किलिंग एन अनबॉर्न चाइल्ड, जिसमें लाइफ आ चुकी है, सोल आ चुका है, आत्मा आ गई है ना. सो ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 का एक तरह से वायलेशन हो गया ना अनबॉर्न चाइल्ड का. ओके, सो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट, है ना, कि अबॉर्शन को एकदम फुल्ली अलाउ भी नहीं कर देना चाहिए. देयर हैज टू बी सम रेगुलेशन, है ना. तो दोनों बोथ नीड्स टू बी बैलेंस. इसीलिए MTP एक्ट वगैरह बनाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. ठीक है, और इसी को फिर अमेंड किया गया था 2021 में. दैट इज व्हाट, है ना. सो सेक्शन 5 दे आर टॉकिंग अबाउट इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ वुमेन. चीफ जस्टिस सेज द टर्म ऑफ लाइफ यूज्ड इन द प्रोविजन कैन नॉट बी इक्वेटेड टू द ब्रॉडर मीनिंग एंड ऑल, है ना. तो ये सब बताया उन्होंने. MTP एक्ट पर लीजिएगा, आई थिंक सैंपल पेपर में ये था भी ना, सैंपल पेपर 1 या 2 में था, है ना. So that is also becomes very important, है ना. Gaganyaan test flight to commence at 7 AM. I hope you are aware Gaganyaan mission जो कि unmanned mission होगा, है ना. Sorry, manned mission होगा ideally.
But first we'll be doing some unmanned test, then after we'll be sending. So original idea, the main idea of Gaganyaan is to send manned mission. जो मेन आइडिया ये है कि हम लोग को इंसान को भेजना है, लेकिन इनिशियल में कुछ टेस्ट होगा जिसमें अनमैन्ड लोग भेजेंगे ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कुछ न्यूज वगैरह में था, ठीक है. सो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, नीति आयोग. बताइए तो. एनीवन? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Wholesale price index is released by मैंने पढ़ाया पेड क्लासेस में. TPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बी इज द राइट आंसर. यस, नंदिता इज राइट. नंदना, यस, है ना. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री. सो बी इज द राइट आंसर. यू शुड बी नोइंग इट, है ना. देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में जो भी PIB का नोटिफिकेशन आता है, जैसे अभी 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था, इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, द नेक्स्ट इज, देखो एक आया था, इजराइल मिलिट्री कंफर्म्स 199 हॉस्टेज अबडक्टेड बाय हमास. सब पढ़ लेना. एक ये कि ब्लिंकन, अभी रिसेंटली न्यूज आ रहा था कि यूएस प्रेसिडेंट विल बी गोइंग टू इजराइल. दैट वाज आल्सो इन द न्यूज, आपने देखा होगा. देन अरब लीग चीफ डिमांड्स एन एंड टू गाजा मिलिट्री ऑपरेशन एंड ऑल. सो अरब लीग से कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग? योर ऑप्शंस आर रियाद, जद्दा, कायरो, दोहा. अरब लीग का हेडक्वार्टर कहां पे, बताइए. Guys, everyone please press the like button, share this video and subscribe to our channel as well. Headquarter of Arab League. Yes, the right answer is option C, Cairo. Yes, Nandita, Nandana, you all are right. C is the right answer. Cairo, Egypt. Okay. Yes. तो ये सब जो सऊदी अरब है और ये सब कंट्री अरब लीग के मेंबर है, ये सब रीजन में समझ लो, ठीक है. ओके, सो अरब लीग्स में है ना. सो कैरो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है. गो एंड रीड समथिंग अबाउट इट. यस, सी इज द राइट आंसर. यस, नंदना, सैफी, स्वप्निल, हरप्रिया, कार्तिक, यू ऑल आर राइट. Youngest ever president elect in Ecuador vows to restore peace. So Daniel Noboa, he is very young, he is 35 years old and he has become the Ecuador's president. ठीक है. So here you will find India. This is Ecuador. So capital है Quito. You will find it in South America. ठीक है. So this is all about today's class, guys. हमारे YouTube channel में playlist में जाना, one shot revision है, इसके view full playlist में जाना. Click there and you will find these classes. इसको revision series जरूर देख लेना. We will be coming up with more such content. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S Exam Prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.